So, very good morning to all of you. Friends, Negotiable Instruments Act 1881. Again, the topic we are discussing, you already have studied in your foundation level. So, now this chapter specifically I will say is a very big chapter. You can't discuss each and every provision of this chapter in detail in this particular session or in the next 2 or 3 sessions, because in a regular batch I teach this particular chapter for almost 18 hours. 18 hours a day, this particular chapter, it almost takes 10 to 12 hours a day. So 1.5 hours a day, it comes almost 18 hours. So what I will say is that on a regular basis, whatever I teach in my regular batch, all those points to be studied, I'll just give it to you. We'll just discuss first the meaning of this chapter. I'll give you points to be studied. You will note down the points to be studied, and later on, I'll give you 2 minutes time. You all will have to tell me, okay sir, explain this concept, explain this concept. I'll just explain that concept which you refer to from the points to be studied. Points to be studied means what you need to study from this particular chapter, entire thing I'll be giving to you. Is it clear? So, before we start our discussion, let us first understand the meaning of the term negotiable instruments. When I refer to the word negotiable instruments, the first thing that comes to mind, what is negotiable? What is negotiable? So when we refer to the word negotiable, negotiable means transferable. Negotiable का मतलब क्या है? Anything which is transferable is negotiable. Negotiable instrument. What is instrument? Instrument is a document in writing. Instrument is a document in writing. See, document in writing is instrument. Negotiable is transferable. So what is negotiable instrument? A document in writing which is transferable. When we join this both, what it means? A document in writing which is transferable. But is this the only meaning? We say no. Because when we go word by word meaning, we can't understand the gist of this act. So to understand the exact meaning of this act, we need to understand that negotiable instrument in detail. So when we refer to the word a document in writing which is transferable, we say a document in writing which is transferable either by delivery or by endorsement and delivery. Either by delivery or endorsement and delivery. Why we say like this? You have to understand that a document in writing which is transferable. When we want to transfer a document in writing, the document in writing has to be either delivered or it has to be endorsed and delivered. Let us understand what is delivered. Delivered का एक एग्जांपल देता हूँ. जब मैं negotiable instrument रेफर करता हूँ, दोस्तों आपको समझना होगा negotiable instrument में 3 ही टाइप के negotiable instruments आते हैं. One is promissory note, second is bill of exchange and third is check. ये 3 ही negotiable instruments हैं. हुंडी एक negotiable instrument नहीं है. हुंडी negotiable instrument एक्ट 1881 आने से पहले वाला एक टर्म है. 1881 में ये एक्ट आने से पहले जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस लेन देन के सेटल होते थे, जिस डॉक्यूमेंट के तहत सेटल होते थे, उसे हुंडी कहते थे. हुंडी वाज अ इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट, इट वाज इन लोकल लैंग्वेज. उसी हुंडी को ये एक्ट आने के बाद नाम बदल दिया गया और वो हुंडी बन गया प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज. नाउ इवन चेक. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के 3 टाइप्स हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक. हम क्या थे, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डॉक्यूमेंट इन राइटिंग व्हिच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. मैं कह रहा हूं सिर्फ डिलीवरी से हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका एग्जांपल दे रहा हूं. तो मान लो आई से व्हाट इज इट, आकाश. मान लो मैं आकाश को 1 करोड़ का चेक देता हूं. आकाश का नाम लिखकर 1 करोड़ का चेक आकाश को देता हूं. सब लोग हैं. अब मैंने वो चेक जब आकाश को दिया, मैंने आकाश को डिलीवर किया साइन करके, करेक्ट. तो मैंने आकाश का नाम लिखा है उस चेक पर, ठीक है. अब आकाश को ये चेक, मान लो व्हाट इज योर नेम, ऋषभ. आकाश को ये चेक ऋषभ को देना है. तो आकाश ये चेक ऋषभ को सिर्फ हैंड ओवर नहीं कर सकता. आकाश को आकाश का नाम लिखकर, आकाश का नाम लिखकर मैंने ये चेक आकाश को दिया. आकाश और ऑर्डर चेक पर लिखा है, 1 करोड़ का अमाउंट है.
8 हो गया, सब डाला है. इट इज नॉट अ क्रॉस चेक, इट इज अ ऑर्डर चेक. आकाश का नाम है ना. अब आकाश को ये चेक ऋषभ को ट्रांसफर करना है, तो आकाश को इस चेक के पीछे अपना साइन करना होगा, ऋषभ का नाम लिखना होगा. तो आकाश को अपना साइन करके जो ऋषभ का नाम लिखकर ऋषभ को दे रहा है, तो आकाश ने इसको ट्रांसफर कैसे किया? बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. आकाश ये चेक डायरेक्टली ऋषभ को हैंडओवर करता, डिलीवर करता तो चलेगा क्या? नहीं, ये वैलिड माना नहीं जाएगा, बिकॉज इस पर आकाश का नाम है. तो जब तक आकाश इस चेक के पीछे अपना साइन ना कर दे, ऋषभ का नाम ना लिख दे, तब तक ऋषभ को ये वैलिड ट्रांसफर माना नहीं जाएगा. तो आकाश के उस साइन को हम कहते हैं एंडोर्समेंट, और ऋषभ को देने की उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिलीवरी. तो ये negotiable instrument is a document in writing which is transferable by delivery or by endorsement and delivery. Endorsement and delivery का मैंने एग्जांपल दिया. सेम एग्जांपल हम लेते हैं. मैंने चेक साइन किया, आकाश को दे दिया, बट आकाश का नाम नहीं लिखा उसके ऊपर, आकाश को हैंड ओवर कर दिया. मैंने आकाश का नाम लिखा नहीं, तो आकाश को दिया हुआ चेक अब ऑर्डर चेक नहीं. ऑर्डर हम आगे देखेंगे. ऑर्डर चेक मतलब व्हिच इज पेएबल टू पर्टिकुलर पर्सन. बट जब मैंने आकाश का नाम उस पर लिखा नहीं, अमाउंट इन फिगर्स, अमाउंट इन वर्ड्स मैंने साइन करके आकाश को दे दिया, तो आकाश के पास जो चेक आया उसे हम बेयरर चेक कहते हैं. बेयरर चेक, जिसके हाथ में चेक इज द बेयरर, इज द होल्डर ऑफ द चेक. अब आकाश को ये चेक आगे ऋषभ को देना है, तो आकाश को इस चेक पर पीछे अपने साइन करने की जरूरत नहीं है. आकाश ये चेक डायरेक्टली ऋषभ को क्या कर सकता है? डिलीवर कर सकता है. मतलब यहां पर आकाश ने ट्रांसफर कैसे किया? इस केस में कैसे किया? ओनली बाय डिलीवरी. ओनली बाय डिलीवरी. पहले केस में कैसे किया? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. तो हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग व्हिच इज ट्रांसफरेबल आइदर बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. जब वो सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर होता है, हम उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट. जब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेयरर इंस्ट्रूमेंट. जब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्समेंट और एंड डिलीवरी दोनों से ट्रांसफर होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. क्या कहते हैं? तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होंगे? 2, बेयरर या ऑर्डर. अरे बोलो. जब वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट होगा, वो कैसे ट्रांसफर होगा? बाय डिलीवरी. और जब ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा तब एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग सबको समझ में आ गया? यस और नो? आप स्क्रीन पर देखो क्या लिखा है. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग व्हिच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. डिलीवरी से हुआ तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट, एंडोर्समेंट और डिलीवरी से हुआ तो सिग्नेचर करना पड़ता है, दैट इज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. अरे बोलो भाई, सब लोग हैं. So now we go to the points to be studied for this chapter. I request you all, आपके नोटबुक में आप लिख लो points to be studied. आपको घर में पढ़ते वक्त ये points to be studied पढ़ने, और इन्हीं points to be studied के ऊपर आपको questions आएंगे, case studies आएंगे. ठीक है? Points to be studied लिख दो one by one. और first points to be studied लिखो meaning negotiable instrument. Second, essential characteristics of negotiable instrument. Essential characteristics of negotiable instrument. Third, holder and holder in due course. Holder and holder in due course. लिखा. Fourth, privileges of HDC. आप लिखते हो, मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो अपने हर हाल में पढ़नी चाहिए, जिनके ऊपर मैक्सिमम केस स्टडीज आते हैं. जो मैंने हाईलाइट किए वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लेंगे. आई होप आप पॉइंट नंबर 4 तक पहुंच चुके हो. प्रिविलेजेस ऑफ एचडीसी आपने लिख दिया.
कैसे हो? कंटिन्यू। ज्यादा नहीं है पॉइंट्स, कुछ 22 पॉइंट्स है। टू बी फास्ट। पॉइंट नंबर 6 तक हो गया सबका? ये इसलिए होना चाहिए पॉइंट्स टू स्टडी बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पॉइंट्स टू स्टडी करो। सी इंटर में रेगुलर है, सीएस एग्जीक्यूटिव में, ये इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो वेटेज होगा डेफिनेटली इतना इन डेप्थ नहीं होगा, बट क्योंकि आपने फाउंडेशन में पढ़ा है तो अब ये समझ के चलना इंटर में आपको केस स्टडीज आएगी। इंटर में आपको इसको लेकर कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑलवेज देयर विल बी केस स्टडीज। केस स्टडीज आपके नोट्स में दिए हुए हैं, मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसके आंसर। हो गया सबका टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग तक? Shall I move to point number 8? जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसे आप इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करना। सी इंटर में क्योंकि इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, इस चैप्टर का सी इंटर में लगभग 14 से 15 मार्क्स का वेटेज है सी इंटर में, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम पढ़ते हैं, जहां पर मुझे लगभग 18 आवर्स पढ़ाना पड़ता है। आपके एग्जीक्यूटिव लेवल में क्योंकि ये बिजनेस लॉस का पार्ट है, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉस दोनों मिला के वेटेज 35 मार्क्स है, तो बिजनेस और कमर्शियल लॉस में कमर्शियल लॉस को वेटेज ज्यादा है। बिजनेस लॉस में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है, काफी चैप्टर्स है, तो इसलिए इसका वेटेज हो के भी एक क्वेश्चन होगा, एक केस स्टडी होगा। सो यू हैव टू डिसाइड व्हेन यू विल स्टडी, जो मैं केस स्टडी आपको दूंगा उतनी ही केस स्टडी आपको करनी है, उन केस स्टडी में से एक क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज़ मैंने इतना आरएनडी किया हुआ है इस चैप्टर में, लगभग 14 साल से मैं चैप्टर पढ़ा हूं, मैंने इतना आरएनडी किया हुआ है इस चैप्टर में, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता मुझे सब पता। पॉइंट नंबर 10 तक हो गया सबका? 10 तक होने के बाद मैं अगले पेज पे जाऊंगा। जिनका भी हो गया है वो पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, और कौन से पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं मुझे जरूर बोलना, या फिर अब जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर लूंगा उससे। ये भी मुझे बताना ही पड़ेगा। आई नो मे बी फाउंडेशन में आपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, तो जब मैं पढ़ा था तब भी मैं हर एक चीज पढ़ा था इन डिटेल में, उतना ही टाइम लगता था। पक्का? ओके, सो देन पॉइंट नंबर 11, एंडोर्समेंट एंड इट्स
types. कहाँ तक पहुंचे आप लोग? 16 तक पहुंचे. वेरी गुड. सिक्सटीन हो गया सबका. 15 15 नहीं हो. 14 आई होप मार्क भी कर रहा जो इंपॉर्टेंट है. ये सुनो, पढ़ो आगे. 17 हो गया सबका पॉइंट. पॉइंट नंबर 17 हो गया ना? नहीं हुआ. 16 मुझे तो सभी इम्पोर्टेंट. जिनको वाकई में बहुत डिटेल में पढ़ना है वो सी इंटर का मेरा लेक्चर शायद मैं आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा. इन डिटेल negotiable student, it contains almost 18 hours. You can request, no problem. सी इंटर में ऐसा है कि जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 60 मार्क्स के लिए तुम्हारा कंपल लॉ होता है. एंटायर कंपल लॉ सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148 तक कंपल लॉ. दैट इज टिल योर ऑडिटर्स चैप्टर सेक्शन 148 तक सेक्शन 1 से. सो दैट इज फॉर 60 मार्क्स. एंड फॉर अदर लॉज में फिर सी इंटर में आपका नेगोशिएबल होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, देन आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो हम जेआईजेल में देखते हैं वो होता है, और फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट जीसीएल जो जेआईजेल में देखते हैं वो होते हैं. 2 चैप्टर्स जेआईजेल के और फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स का नेगोशिएबल 2 पीबीसीएल. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीबीसीएल, जेआईजेल एंड कंपल लॉ. सी इंटर वो 100 मार्क्स का. और फिर सीए फाइनल में सेक्शन 149 से लेके 470 तक होता है. मतलब जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव का कंपल लॉ के रिमेनिंग चैप्टर्स है, तो ऐसा वो पूरा सीए इंटर का कंपल लॉ एंड सीए फाइनल के कंपल लॉ को जोड़ देंगे तो सीएस एग्जीक्यूटिव का कंपल लॉ. ठीक है, समझ लिखा. दिस आर द 21 पॉइंट्स आई विल से इंपॉर्टेंट वंस. डेफिनेटली इन 21 पॉइंट्स के अलावा कुछ और आप एक पॉइंट ऐड कर लो उधर. पॉइंट नंबर 22 उसमें ऐड कर सकते हो jurisdiction of court. Jurisdiction of court in case of
बाउंसिंग ऑफ चेक, मतलब कौन से कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हम चेक बाउंसिंग का केस कर सकते हैं। एक नया अमेंडमेंट है, रिसेंटली 7-8 साल पहले आया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अमेंडमेंट। देन आई विल से NEFT and RTGS. NEFT and RTGS, I hope you all are aware. Yes. National Electronic Fund Transfer and Real Time Gross Settlement. तो वो एक negotiable instrument एक्ट के तहत चेक के कंसर्न में वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे कुल मिला के 23.9 होगा। ऐसे तो और भी इसको बढ़ा सकते हैं, बट रेस्ट्रिक्टेड इनटू दिस डिस्कशन, ठीक है। तो जब अभी ये पॉइंट्स आपको मार्क करके दिए ही है, तो मैंने तो मीनिंग ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट आपको ऑलरेडी बता दिया, करेक्ट। हम लोग डायरेक्टली अब वो जो इंपॉर्टेंट मार्क के पॉइंट्स और डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं लोगों के साथ। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसेप्ट है। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का रीड का हड्डी बैकबोन अगर आप मुझे पूछोगे तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसेप्ट। जो केस स्टडीज आती है लगभग 31 केस स्टडीज मैं आपको दूंगा, उन 31 केस स्टडीज में से लगभग 25 केस स्टडीज ऐसे होगी, 20 to 25, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसेप्ट को लेकर कहीं ना कहीं रेफरेंस होगा। इतना इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 8 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस द टर्म होल्डर। सेक्शन 8 कहता है होल्डर मतलब कौन। होल्डर मींस a person who has possession of the negotiable instrument or whose name is mentioned on the negotiable instrument and इस सेकंड कंडीशन के लिए मैं क्या लिखा हूं एंड, मतलब दोनों कंडीशन कंपल्सरी। हु हैज राइट ऑफ रिकवरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी पर्सन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत होल्डर बनने के लिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसके पास क्या होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, या उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर उसका नाम लिखा होना चाहिए। पोजीशन नहीं भी है, नाम लिखा है तो भी होल्डर बन सकता। एंड सिर्फ नाम होके या पोजीशन होके नहीं चले, उसके पास उस नाम और पोजीशन के अलावा राइट ऑफ रिकवरी होना चाहिए। किसी ने धोखे से ऑब्टेन कर लिया, पोजीशन आ गया, बट राइट ऑफ रिकवरी नहीं हो सकता। राइट ऑफ रिकवरी तभी होगा जब वो लीगल राइट होगा। जब एक व्यक्ति को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत होल्डर बनना है, तो होल्डर बनने के लिए कितने कंडीशन मिलेगा, 2। एक तो उसके पास उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन या नाम होना चाहिए उसका उस पर, एंड उसके पास राइट ऑफ रिकवरी होना चाहिए, तो वो बंदा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का होल्डर है। कैसे, जो थोड़ी देर पहले मैं एग्जांपल दिया था आपके सामने आकाश का। जब मैंने वो चेक आकाश के नाम से लिखा और आकाश को दिया तो ऑर्डर चेक था। आकाश के पास उस चेक के तहत राइट ऑफ रिकवरी क्यों आया, आकाश उस केस में होल्डर क्यों बना पहले, बिकॉज आकाश का नाम है और आकाश के पास राइट ऑफ रिकवरी। मैंने आकाश का नाम नहीं लिखा पर आकाश को चेक दे दिया तो भी आकाश होल्डर है, क्यों, आकाश के पास पोजीशन है एंड राइट ऑफ रिकवरी है। सब लोग समझ लो। जब मैंने आकाश का नाम नहीं लिखा था और आकाश को दिया था, मान लो आकाश से वो किसी थर्ड पर्सन ने चुरा लिया, अब वो थर्ड पर्सन के पास आ गया क्योंकि वो बेरर चेक था, उस थर्ड पर्सन के पास पोजीशन आया, बट क्योंकि उसने चुराया हुआ है उसके पास राइट ऑफ रिकवरी नहीं है। तो जो व्यक्ति उस केस में होल्डर के दोनों कंडीशन में से एक ही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दोनों नहीं कर रहा है, वो होल्डर नहीं होता है, वो डिफेक्टिव होल्डर होता है। कौन होता है, मतलब होल्डर बनने के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो वो क्या बन जाएगा, डिफेक्टिव होल्डर। आपको कोई नहीं, होल्डर कंसेप्ट सेक्शन 8 के तहत सबको समझा। फिर जो मैं कह रहा हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत होल्डर के जैसा ही और एक कंसेप्ट है सेक्शन 9 में जो कहता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
होल्डर इन ड्यू कोर्स। इफ यू आस्क मी, मैं कहूंगा ये ब्रेन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये नहीं तो ब्रेन नहीं तो कुछ भी नहीं इंसान। वैसे होल्डर ड्यू कोर्स नहीं तो फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं। होल्डर इन ड्यू कोर्स, मैंने होल्डर तो बता दिया, उसमें आगे वर्ड कौन सा होगा? इन ड्यू कोर्स। इन ड्यू कोर्स, व्हाट इज इन ड्यू कोर्स? मतलब बिफोर द ड्यू डेट। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या? बिफोर द ड्यू डेट। अरे कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो, प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, हर एक की एक वैलिडिटी है, हर एक की एक वैलिडिटी है। मैंने जब एक चेक आकाश का नाम लिखकर आकाश को दे दिया, उस चेक की वैलिडिटी मैंने कुछ नहीं कहा तो 3 महीना। अगर आकाश ने वो चेक के पीछे साइन करके ऋषभ को दे दिया तो ऋषभ इज द होल्डर नाउ ऑफ दैट चेक बिफोर द ड्यू डेट। मतलब ऋषभ इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। आकाश होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं होगा, ऋषभ होगा। आकाश होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं होगा? बिकॉज आकाश और मैंने चेक करके साइन करके आकाश को दिया है। आकाश और मैं तो ओरिजिनल पार्टीज है, वी आर द ओरिजिनल पार्टीज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो ओरिजिनल पार्टी है वही एचडीसी कैसे बने? वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा, वो तो होल्डर है। समझ आएंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए आकाश के बाद आकाश ने वो किसी और को ट्रांसफर किया, एंडोर्स किया, निगोशिएट किया, और वो ऐसा निगोशिएट होते होते गए किसी और पर्सन के पास। तो जितने भी पार्टीज है बाद में वो सारे होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकते हैं, बन सकते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए सेक्शन 9 के तहत कंडीशन ये है, वो कहता है फॉर एनी पर्सन to be a HDC, he must be a holder first। भैया HDC बाद में, पहले होल्डर बनना होगा। HDC बनने के लिए पहले वो कौन होना चाहिए? होल्डर मतलब क्या? उसका नाम उस पर होना चाहिए या उसके पास पैसेज होना चाहिए एंड राइट ऑफ रिकवरी होना चाहिए। अगर वो HDC बनना चाहता है तो पहले वो होल्डर होना चाहिए। हाँ, होल्डर होने के अलावा एंड thereafter he must fulfill following 3 conditions। कौन से 3 कंडीशंस है? नंबर 1, he must have obtained the negotiable instrument for consideration, something in return, and must have obtained it before maturity। वो negotiable instrument मैच्योर होने से पहले मिलना चाहिए, and must have taken it in good faith। क्या कह रहा हूं मैं? अरे क्या कह रहा हूं? गुड फेथ। एक होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए उसके पास वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे आना चाहिए? फॉर कंसेशन, उसके अलावा बिफोर मैच्योरिटी एंड इन गुड फेथ। ये तीनों कंडीशंस मैंडेटरी। और अब आपको समझेगा, मैंने जो आपको कहा था, मैंने जब आकाश का नाम लिखकर चेक दिया, ध्यान रखना, आकाश होल्डर बना। फिर मुझे कुछ लोग बोलते सर आकाश होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं बन सकता? देखो, आकाश होल्डर बना, आकाश गोल्डन ड्यू कोर्स के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि चेक करो। क्या आकाश के पास वो कंसेशन में आया क्या? ओके, आया, मुझे आकाश को कुछ देना था। क्या आकाश के पास वो मैच्योरिटी से पहले आया क्या? यस, मैच्योरिटी से पहले आया। बट क्या आकाश के पास वो गुड फेथ में आया क्या? नहीं। बिकॉज गुड फेथ में आने के लिए आकाश हिमसेल्फ वाज द ओरिजिनल पार्टी। आकाश को गुड फेथ में लेने का सवाल ही आता है, बिकॉज आकाश को मुझे पेबल था। गुड फेथ कब होता है? जब आकाश ने वो साइन करके किसी और को दिया। उस चेक पर पेमेंट मैं करने वाला हूं,
आकाश ने साइन करके किसी और को दिया, उसने ले लिया, इस विश्वास के साथ लिया कि आकाश को इसे ट्रांसफर करने का राइट है और मैं ड्यू डेट पर पे करूंगा। वो मुझे नहीं जानता ना, पेमेंट तो मुझे करना है, बट उसने गुड फेथ में लिया बिकॉज़ आकाश को लीगल राइट है। सो गुड फेथ का मतलब क्या है? मस्ट हैव टेकन गुड फेथ। गुड फेथ का मीनिंग लिखो, दैट इज ट्रांसफरर, द ट्रांसफरर of negotiable instrument is presumed to have a legal right, is presumed to have a legal right of negotiating it। मतलब आकाश ने अगर आगे किसी और को दिया तो ये उस विश्वास के साथ अगर वो लेता है कि हाँ, उसको ये लगता है कि आकाश के पास लीगल राइट है ट्रांसफर करने का, तो उसे वो गुड फेथ मानेंगे। गुड फेथ में बनने के लिए ट्रांसफरर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव अ लीगल राइट। मतलब ये प्रिजम्पशन कौन करेगा? ट्रांसफर ही करेगा। सो ट्रांसफर ही प्रिज्यूम्स दैट ट्रांसफरर हैज अ लीगल राइट टू ट्रांसफर। Transferor of a negotiable instrument is presumed to have a legal right of negotiating it by the transfer। ट्रांसफर ही प्रिज्यूम करेगा उसे। अरे बोलो, ट्रांसफर ही क्या प्रिज्यूम करेगा? कि ट्रांसफरर को उसे बोलो निगोशिएट करने का अधिकार है। इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द ट्रांसफर। तब जाके हम कहेंगे ट्रांसफर ने उसे कैसे लिया? गुड फेथ में लिया। मतलब जो पर्सन ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा सेक्शन 9 के और सेक्शन 8 के तहत वो होल्डर है, तो बंदा क्या बनेगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैंने आपको डिफेक्टिव होल्डर बताया, होल्डर बताया, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बताया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में होल्डर इन ड्यू कोर्स को काफी ज्यादा प्रिविलेजेस है, काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। क्यों है वो समझो। जो ओरिजिनल पार्टीज होते हैं वो तो एक दूसरे को जानते हैं। एचडीसी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स इसलिए दिए गए बिकॉज एचडीसी को कोई बेनिफिट नहीं होता तो ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी किसी और का एंडोर्स किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में थर्ड पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एचडीसी के काफी ज्यादा प्रिविलेजेस है, बेनिफिट्स है। अब वो एचडीसी के प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स क्या है वो हम देखेंगे। तो मैं नीचे लिख रहा हूं प्रिविलेजेस ऑफ एचडीसी। इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस ही मैं बता रहा हूं, ऐसे तो 10 प्रिविलेजेस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। प्रिविलेजेस ऑफ एचडीसी। तो पहला प्रिविलेज एचडीसी का ऐसा है, एग्जांपल में देता हूं, आप स्क्रीन पर देखना, हम ड्रॉ कर सकते हो। मान लो 10,000 रुपए का ये बिल है। इस बिल के तहत मैं कह रहा हूं ए ड्रॉवर था एंड बी कौन था? ड्रॉई था। मतलब बिल एक्सेप्ट करके बी किसको देगा? ए को देगा। अरे बोलो, सब लोग है ना। अब ए ने वो बिल आगे मान लो सी को दिया, सी ने आगे डी को दिया, डी ने आगे ई को दिया, ई ने आगे एफ को दिया, एफ ने आगे जी को दिया। हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं? अरे बोलो 100% हो सकता है। तो ऐसे केस में ड्यू डेट से पहले बिल किसके हाथ में था? लास्ट। अरे किसके हाथ में था? जी के हाथ में। और अगर कुछ लिखा नहीं गया, ध्यान रखो, जब ए ने सी को दिया वहां पर कुछ लिखा नहीं है तो हम मान लेंगे ए ने सी को कंसिडरेशन में दिया, मैच्योरिटी से पहले आया और गुड फेथ में आया। ये हम प्रिज्यूम कर लेंगे। ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। If nothing is given, it is presumed that it is given before maturity. It is presumed that it is given in good faith and for consideration. सब लोग हैं? तो यहां पर मैं कहूंगा, अब अगर A ने ये आगे C को दे दिया तो हम कहेंगे C is HDC। C ने आगे D को दिया, D is HDC। D ने आगे E को दिया, E is HDC। E ने आगे F को दिया, F is HDC। F ने आगे G को दिया, G is a
HDC पहला प्रिविलेज क्या है? सुनो, जी गया मैच्योरिटी में बी के पास, किसके पास? बी के पास। बी ने डिसऑनर कर दिया, बी डिड नॉट पे, जी तो बी के पास आएगा ना? समझ आया सबको? अरे यस और नो? जी गया बी के पास, बी ने डिसऑनर कर दिया, बी ने पे नहीं किया। जैसे बी ने पे नहीं किया, जी क्यों सफर करेंगे? तो द लॉ सेज, पहला प्रिविलेज है, द HDC ऑफ अ बिल ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल हैज द राइट to recover his amount due on the bill from any one of the prior parties. From any one of the prior parties. किसी भी prior party से वो रिकवर कर सकते। मतलब B ने डिसऑनर करने पर G चाहे तो F से रिकवर करे, G चाहे तो D से या E से रिकवर करे, G चाहे तो C से रिकवर करे, G चाहे तो A से रिकवर करे, किसी एक से करे, सबसे नहीं। फिर उसको बोलते सर जी गया ए के पास, ये बोलता है जी को, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, तुम कहां से आए हो? आई डोंट नो यू। ए जी को कह रहा है आई डोंट नो यू। जी कहता है कि बिल देख, इस बिल पर तूने जो एंडोर्समेंट किया है, अब वो एंडोर्स होके मेरे पास आया, मैं HDC हूं एंड यू आर द प्रायर पार्टी, यू आर द प्रायर पार्टी। तो सर क्या ए अगर जी को पे करेगा तो ए का नुकसान होगा क्या? नहीं। जस्ट इमेजिन अगर जी ने ये F से रिकवर कर लिया तो F किससे रिकवर करेगा? E से। E किससे रिकवर करेगा? D से। D C से, C A से, और A बाद में B के ऊपर सूट फाइल करेगा। भैया HDC क्यों सफर करे? HDC अगर कोर्ट में लड़ते बैठेगा तो कोई भी ऐसे व्यक्ति बिल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बोले यार किधर जनरेट पाता है वो नहीं पे करेगा तो मेरे को कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। तो लॉ कहता है तुम प्रायर पार्टी से रिकवर कर लो, वो प्रायर पार्टी एंड में जो मेन ड्रॉवर होगा A और B देख लेंगे। वैसे भी A और B का ही ट्रांजैक्शन था। अरे बोलो हाँ, अगर G ने डायरेक्टली C से रिकवर कर लिया कोई दिक्कत नहीं, C A से रिकवर कर लेगा। अरे बोलो ना, सब लोग समझ रहे हैं? पक्का? सो फर्स्ट प्रिविलेज ऑफ HDC क्या है? फर्स्ट प्रिविलेज जो मैंने अभी एग्जांपल ड्रॉ किया उसके नीचे लिखूंगा, अब लिखो द मेडिटेट कर रहा लिखो, ऑन dishonor of the bill, on dishonor of the bill by B, on dishonor of the bill by B, comma, the HDC G क्यों है? Because due date में अभी G क्या है ना? The HDC G can recover from any one of the prior parties. Can recover from any one of the prior parties. ये नियम क्या था? वो कोई भी प्रायर पार्टी को सीव करके रिकवर कर सकता है। कैन रिकवर फ्रॉम एनी वन ऑफ द प्रायर पार्टीज। ब्रैकेट में लिखना A to F। अरे बोलो भाई, सब है पक्का? लॉक कर दो, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल के लिए मैं इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहा हूं। आप सेकंड प्रिविलेज के लिए, आप लोग सेकंड प्रिविलेज के लिए वहां पर सेम एग्जांपल ड्रॉ कर लो, और सेकंड प्रिविलेज के लिए देखो मैंने क्या किया। ए ने सी को गिफ्ट में दिया, सी ने डी को वैल्यू में दिया, डी ने ई को गिफ्ट में दिया, ई ने एफ को वैल्यू में दिया, और एफ ने जी को भी वैल्यू में दिया, फॉर वैल्यू दिया। तो मुझे आप लोग बोलोगे ए ने सी को जब गिफ्ट में दिया, अब सी HDC है या नहीं? अरे गधो, सी HDC है या नहीं? है या नहीं? अरे सी HDC है या नहीं? क्यों नहीं है? कंसिडरेशन। तो क्या सी होल्डर है क्या? सी होल्डर है क्या? सी होल्डर है क्या? यस। तो सी होल्डर है क्योंकि उसका नाम है और उसके पास राइट ऑफ रिकवरी है। डी कौन है? अरे गधो बोलो, डी कौन है? HDC है। ई कौन है? होल्डर है। अरे बोलो ना, एफ कौन है? HDC है। और जी भी HDC है। सुनो अब सुनो, ड्यू डेट से कुछ दिन पहले जी ने ये H को गिफ्ट में दिया। जी ने H को गिफ्ट में दिया, तो ड्यू डेट पर किसके हाथ में है? H के हाथ में। H कौन है रे? अरे H कौन है रे?
है क्या नहीं? अरे बोलो। अब ड्यू डेट पर एच गया बी के पास, अरे बोलो ना, और बी ने डिसऑनर कर दी, क्या एच किसी भी प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है? क्या एच प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है? द लॉ सेज यस, एच रिकवर कर सकता है। और इस एच को होल्डर रहने दो ना। सेकंड प्रिविलेज क्या करेगा? ये एग्जांपल ड्रॉ किया ना, उसके नीचे लिखो when the negotiable instrument is negotiated by the HDC to a holder, ब्रैकेट में लिखो, that is G2H, G2H, अरे बोलो ना, ब्रैकेट क्लोज, then the holder, ब्रैकेट में लिखना H, the holder gets all the rights of the HDC only. Yeah, the holder gets all the rights of the HDC. HDC ब्रैकेट में G. If the bill is dishonored, the holder gets all the rights of HDC. If the bill is dishonored, मतलब क्या है? जब H B के पास गया ना, अरे सुनो सब लोग, H B के पास गया, B ने डिसऑनर कर दिया, तो अब H किससे रिकवर कर सकता है? बोलो, H किससे रिकवर कर सकता है? किससे रिकवर कर सकता है? बोलो जल्दी। G से, सिर्फ G से। बोलो, किससे? Gets all the rights of HDC है ना, तो किससे रिकवर कर सकता है? गधो, यही आपको फर्क नहीं समझता है। H A to F से ही रिकवर कर सकता है, G से नहीं। उसके पास होल्डर इन ड्यू कोर्स के सारे राइट आते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट क्या था? G का राइट क्या था? HDC का राइट क्या था? पहले प्रिविलेज में क्या लिखा था? On decision of the bill, HDC has the right to recover from any of the prior parties. तो G का प्रायर पार्टीज कौन था? A to F। तो जो G का राइट था, वही अगर G ने H को दिया, तो H को वही राइट मिलेगा ना? H को नया राइट G तो ऐड होगा उसको। अरे तो HDC के पास से अगर होल्डर को आता है, तो होल्डर डिसऑनर होने पर HDC के सारे राइट्स उसको मिलते हैं, तो HDC के पास जो राइट था, वही राइट H को मिलेगा। मतलब यहां पर H A टू लेकर F तक किसी भी प्रायर पार्टी से रिकवर कर सकता है। अच्छा, G से क्यों नहीं कर सकता? तो G ने तो गिफ्ट में दिया, G ने गिफ्ट में दिया था, तो G से रिकवर नहीं कर सकता। A टू F से कर सकता है। अरे बोलो बाबा, सब लोग है क्या? पक्का? ये प्रिविलेज नंबर 2 था। फिर मुझे उसको बोलते सर आपने होल्डर भी रिकवर कर सकता है काम, HDC भी रिकवर कर सकता है काम, फिर HDC का एक प्रिविलेज कैसे हुआ? हुआ ना प्रिविलेज। देखो ना, मैं इसी सेकंड एग्जांपल में मान लो, जस्ट इमेजिन करो सब लोग, मैं नीचे लिखता हूं, F ने अगर ये आगे G को गिफ्ट में दिया था, और G ने भी आगे H को गिफ्ट में दिया था, हमारे इस ऊपर वाले एग्जांपल, तो G कौन होता? होल्डर। H भी कौन होता? और अगर ड्यू डेट पर H जाता B के पास और B डिसऑनर करता, तो H के पास कोई राइट नहीं था, क्योंकि H के पास, होल्डर के पास, H जो होल्डर बना, होल्डर के पास ये होल्डर से आया, तो होल्डर से होल्डर का आया, तो होल्डर को कोई राइट नहीं। HDC से होल्डर का आया, तो होल्डर को HDC की राइट नहीं। मतलब H अगर B के पास जाता, B डिसऑनर करता, तो H के पास एक ही रास्ता था, वो B को स्यू कर, कोर्ट में लड़े। H किसी प्रायर पार्टी के पास जा नहीं सकता। इस एग्जांपल समझ रहे? इसीलिए HDC का ये बेनिफिट हुआ। HDC होने के कारण होल्डर राइट मिला, तो ये सेकंड प्रिविलेज हम HDC में गिनते हैं। आइए सुनो, अब सुना थर्ड प्रिविलेज में ना, थर्ड प्रिविलेज इसी सेकंड के एग्जांपल में छुपा हुआ है। थर्ड प्रिविलेज मैं कहूंगा, जस्ट इमेजिन करो, अब ये H के पास है बिल,
एच गया बी के पास, बी ने डिसाउंड कर दिया, बी ने डिसाउंड करने के बाद एच गया, जस्ट इमेजिन करो विल से डी के पास, एच किसके पास गया, डी के पास, एच बोलता है डी को यू आर द प्रायर पार्टी, मुझे ये जी से आया, जी का राइट था तुम्हारे खिलाफ, तुम मुझे भी करो। डी कहता भाई मैंने तो ये ई को गिफ्ट में दिया था, मैंने ई को कैसे दिया, बगैर कंसिडरेशन के दिया था, तो अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एच कहता है भैया तूने गिफ्ट में दिया था, डजंट मैटर, बट तूने गिफ्ट में देने के बाद उस ई ने आगे वैल्यू में दिया, समझ रहे कि ई ने आगे वैल्यू में दिया, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एच अगर डी के पास जाता है तो भी डी एच को लाया है, एच अगर ए के पास जाता है तो ए भी एच को लायबल है। ये नहीं कह सकता कि मैंने सी को गिफ्ट में दिया था, भैया तूने गिफ्ट में दिया था, डजंट मैटर, बट जिस पर्सन से मुझे आया वो एचडीसी था, उसको तेरे तरफ राइट था तो मेरे तेरे तरफ राइट है। तो थर्ड प्रिविलेज क्या कहता है, लिखो इसमें नीचे थर्ड वन, नो प्रायर पार्टी, नो प्रायर पार्टी ऑन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नो प्रायर पार्टी ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे, नो प्रायर पार्टी ऑन अ negotiable instrument can defend himself, can defend himself by saying that he had endorsed the bill, he had endorsed the bill, he had endorsed the bill without consideration, he had endorsed the bill without consideration। अरे इन सारे केसेस में जब ए ने सी को दिया था तो ए को तो साइन करके सी को देना पड़ेगा, सी ने जब डी को दिया तो डी ने सी ने साइन करके डी को दिया था, डी ने ई को साइन करते डी ने सिर्फ साइन करके ई को दिया, डी ने बगैर कंसेशन का दिया था, डी ने बोल सकता भैया मैंने तो बगैर कंसेशन के दिया था साइन करके, मेरा कोई लेन देन नहीं है, यू आर द प्रायर पार्टी और लायबल, फिर आपने कंसेशन में दिया हो डजंट मैटर, ये थर्ड प्रिविलेज हो, समझ गए। तो अब मैं कुछ इसी को लेकर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, यू हैव टू गिव मी आंसर फॉर दिस, ठीक है। लेट अस सी सम प्रैक्टिस हिंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ए कौन है, ड्रॉ, बी वेरी गुड, ए को बी से कितना आना था, 5000 लेते हो, ए ने भी एक्सेप्ट ड्रॉ करके बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने ये बिल आगे ड्यू डेट से पहले 3 महीना ड्यू डेट था, सी को एंडोर्स किया तो बी ने अपना साइन किया, सी का नाम लिखा, सी को दे दिया फॉर वैल्यू, सी ने इस बिल पर अपना साइन किया, डी को दिया बट डी का नाम नहीं लिखा, वैल्यू नहीं दिया, सी भी एचडीसी है, डी भी एचडीसी है, पर दोनों में फर्क यह है, ध्यान रखना, सी का नाम था इस पर, डी का नाम नहीं है, मतलब डी इज द, हम कहते हैं डी के पास जो इंस्ट्रूमेंट है, सी के पास जो इंस्ट्रूमेंट साइन होके आया था वो ऑर्डर था, डी के पास जो साइन होके आया वो क्या है, अरे वो क्या है, बेरर है। जब सी ने डी का नाम नहीं लिखा है, सी ने सिर्फ साइन किया बगैर नाम लिखे डी को दिया, मतलब सी डी के हाथ में बेरर है, अगर डी आगे किसी और को देना चाहता है तो डी को साइन करने की जरूरत नहीं, डी क्या कर सकता है, सी के साइन के ऊपर ही उस पार्टी का नाम लिख देगा, अरे यस और नो, डी उस सी के साइन के ऊपर ही मान लो किसी और को देना चाहता है, डी मान लो जेड को देना चाहता है, तो जब जेड आएगा डी को क्या करना है, सी के साइन के ऊपर जेड का नाम लिख देना और जेड का नाम लिख के जेड को दे देना, इससे होगा क्या, डी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में प्रायर पार्टी बनेगा ही नहीं, सी के पास सीधा जेड लिखेगा बिकॉज़ डी का साइन है ना, जो साइन जिसका साइन है वही प्रायर पार्टी, सब लोग हैं यहां तक समझे। सी ने ये बगैर डी का नाम लिए डी के पास दिया और डी से वो ई ने चुरा लिया, he has stolen it, he has stolen it, और ई ने उस पर अपना नाम लिख दिया और ई ने आगे वो एफ को दिया,
समझ रहे? एफ ने देखा, अच्छा सी का साइन है, ई का नाम है, एफ ने गुड फेथ में लिया, सब लोग हैं पक्का? अब एफ सवाल ये आता है, क्या एफ इस इंस्ट्रूमेंट के तहत चुराए हुए इंस्ट्रूमेंट जो ई ने था, वो चुराए हुए इंस्ट्रूमेंट ई ने जो एफ को दिया था, एफ इस इंस्ट्रूमेंट के तहत ड्यू डेट पर बी से जाके पैसा रिकवर कर सकता है क्या? ये मेरा सवाल है। दोस्तों मुझे बोलो, CHDC था, अरे था कि नहीं? DHDC था, ई कौन है? ई कौन है? चोर। वेरी गुड। बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की भाषा में कौन है? EHDC है कि नहीं? अरे EHDC है कि नहीं? तो ई कौन है? अरे गधो, उल्लू के पट्टो, ई डिफेक्टिव होल्डर है। कमाल हो गई आपकी, ई डिफेक्टिव होल्डर है ना, उसका भले ही नाम उस पर लिखा है पर उसके पास राइट ऑफ रिकवरी नहीं है, बिकॉज उसने चुराया हुआ है, ये स्टोलन इट, इज इलीगल, तो डिफेक्टिव होल्डर है। और ये सुनो, बट ई ने, क्योंकि सी के साइन के ऊपर ई का नाम लिखा था, ई ने वो एफ को दिया, एफ ने देखा ई का नाम है, एफ को तो ई से पैसा आना था, एफ ने उसे कंसेशन में लिया, मैच्योरिटी से पहले लिया, गुड फेथ में लिया, तो एफ एचडीसी बन गया। अरे एफ एचडीसी बना कि नहीं? अरे बना कि नहीं? बना कि नहीं? तो फिर अगर ड्यू डेट पर एफ के पास बी के पास जाके रिकवर करने का राइट है, बिकॉज एचडीसी का पहला प्रिविलेज है, वो ड्रॉइंग से जाए और ड्रॉइंग बी ने डिसॉ में किया, तो एफ हैज अ राइट टू रिकवर फ्रॉम एनी प्रायर पार्टी। एनी प्रायर पार्टी में ए, सी एंड ई आएगा, डी नहीं आएगा बिकॉज डी का नाम ही नहीं है। एफ अगर चाहे तो बी के डिसऑन करने पर किसी भी प्रायर पार्टी से रिकॉर्ड कर सकते। अरे बोलो भाई, सब लोग हैं पक्का? ओके, मान लो ई ने ये एफ को गिफ्ट में दिया, ई ने एफ को गिफ्ट में दिया, अब एफ बी के पास जाके ड्यू डेट पर जो प्रेजेंट किया, बिल डिसऑन होगी, बिल डिसऑन होगी। अब एफ के पास क्या राइट है? एफ के पास कोई भी राइट नहीं है, बिकॉज ई डिफेक्टिव होल्डर था, और डिफेक्टिव होल्डर मतलब इस केस में एफ के पास कोई राइट नहीं है। सब लोग हैं? तो डिफेक्टिव होल्डर से होल्डर को मिला ना, एफ तो होल्डर ही है। अरे बोलो ना पक्का? बढ़ो आगे, इसी में एग्जांपल मॉडिफाई कर रहा हूं। मान लो हम कहेंगे अगेन ई ने एफ को वैल्यू में दिया था, एफ कौन है? और एफ ने आगे हम कहेंगे जी को गिफ्ट में दिया, ई का चुराया हुआ था, ई ने एफ को वैल्यू में दिया, अब एफ ने आगे जी को गिफ्ट में दिया, अब ड्यू डेट पर जी गया बी के पास, बी डिसऑनर कर गया, बी डिसऑनर कर गया, तो जी इस केस में किससे रिकवर कर सकता है? जी कर सकता है क्या रिकवर? अरे कर सकता है कि जी रिकवर, बी ने डिसऑनर करने पर जी कर सकता है। अरे गधो, प्रिविलेज नंबर 2, a holder who derives a bill from a holder in due course will get all the rights of holder in due course। तो जो F का राइट था वही G को आएगा, मतलब G इस केस में A, C और E किसी को भी लागू कर सकता है। मतलब एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब डिफेक्टिव होल्डर के हाथ में आता है क्या, तो वो इनवैलिड बन जाता है। बट डिफेक्टिव होल्डर के बाद अगर वो एचडीसी के हाथ में आ गया, किसके हाथ में, तो इट गेट्स क्लींस्ड फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, वो क्लीन हो जाता है सारे डिफेक्ट्स। जहां तक वो डिफेक्टिव होल्डर के हाथ में, डिफेक्टिव होल्डर को राइट ऑफ रिकवरी नहीं है। अगर जस्ट इमेजिन करो ई ने ये चुराया था डी से, और ई ने चुराने के बाद ई ने अपने पास ही रखा, ई गया मैच्योरिटी में बी के पास, बी से रिकवर भी कर लिया पैसा, रिकवर कर भी लिया, तो बाद में ई से वापस रिकवर होगा। अगर ई ने बी से रिकवर भी कर लिया तो कानून ई से वापस रिकवर करेगा, बिकॉज़ ई का तो चुराया हुआ है, ही हैज नो राइट ऑफ रिकवरी। तो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब डिफेक्टिव होल्डर के हाथ में आ जाता है
वो इनवैलिड हो जाता, उसके पास कोई राइट ऑफ रिकवरी है नहीं। बट वो इनवैलिड होने के बाद बावजूद अगर वो डिफेक्टिव होल्डर के बाद अगर वो किसी एचडीसी के हाथ में आ गया तो उसके इनवैलिडनेस को हटा के इट गेट्स क्लींस्ड फ्रॉम ऑल डिफेक्ट और वो फिर से वैलिड हो जाता। एचडीसी के बाद अगर किसी होल्डर के हाथ में आया तो वो वैलिड रहेगा। अरे बोलो भाई, खास बात समझ रहे? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खास बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ये। और मैं कह रहा हूं ये तभी पॉसिबल है जब आपको उतना सब कुछ हर एक कंसेप्ट पता हो। मैंने वो प्रिविलेजेस डिस्कस करते करते आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक को बता दिया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक आप मुझे पूछोगे, जो पॉइंट नंबर 2 दिया है, तो मैंने कहा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल फ्रीली। जब ए ने सी को एंडोर्स किया था, बी ने एक्सेप्ट किया करके ए को दिया था, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया था। इस बिल पर ड्रॉई भी था, बी को पे करना था, बट ए ने जब सी को दिया, ए को बी के परमिशन की जरूरत नहीं थी। सी ने आगे डी को दिया तो सी को ए के परमिशन की जरूरत नहीं थी। तो हम कहते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर है इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या कहते? इनफाइनाइट टाइम्स बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के बाद 48 घंटे तक 48 आवर्स तक ये ट्रांसफरेबल होता है। बट मैच्योरिटी से पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार भी कर सकते सर, चेक के पीछे जगह खत्म होगी, ट्रांसफर होती है, कोई दिक्कत नहीं। एक पेपर पर आपको फिर से उधर ट्रांसफर करके वो पेपर चेक में जोड़ देंगे, पेपर खत्म हो गया, नया पेपर जोड़ो, वो भी खत्म हो गया और एक जोड़ो। इनफाइनाइट टाइम ट्रांसफर हो सकता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फीचर है। नंबर 2 फीचर है, a negotiable instrument becomes defective but once it reaches the hands of a negotiable instrument which is defective gets cleansed from all defects once it passes to the hands of a HTC. फिर HTC has a right to sue any of the prior parties if the bill is disowned. फिर negotiable instrument का फीचर है, every bill which is endorsed it is presumed unless given otherwise, unless mentioned otherwise, it is presumed it is for a conservation. It is before the due date. The transfer has a valid title. It is properly stamped. ये सब उसमें प्रिज्यूम किया है। सब लोग हैं ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में डिस्कस किया आपसे, पक्का? बड़ू मैंने आपको ये जो बताया इसको लेके लेट अस सी व्हाट यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। ओके, there are some questions in our next lecture we'll discuss that question। मैं कुछ सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। अभी मैंने आपको कितने फीचर डिस्कस किया आपके साथ? तीन प्रिविलेजेस डिस्कस किए, करेक्ट? उसके अलावा आपको अलग अलग कुछ कंसेप्ट बताए। जो पॉइंट्स भी स्टडीड थे उसमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जस्ट इमेजिन करो हमारे किसी एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मान लो बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ठीक है? सब लोग हैं, बी ने एक्सेप्ट करके किसको दिया? ए को दिया। ए ने इस बिल के पीछे अपना साइन किया और ए को ये बिल एक उसका क्रेडिटर था, ए का जेड, उसे देना था। किसको देना था? जेड। ए ने साइन किया बट जेड का नाम नहीं लिखा और अपने ड्रॉअर में रख दिया। ये सोचकर कि कल जेड आएगा, जेड का नाम लिख के उसको दे दूंगा। इन्हें साइन कर रख दिया ये सोचकर कि अगर मैं नहीं रहा तो भी मेरा मैनेजर दे सकता। ए के ड्रॉवर से रातों रात उसका एम्प्लॉय सी वो चुरा लेता है बिल। ए ने तो उस पर साइन किया हुआ था। सी उस साइन के पीछे ए के साइन के उधर अपना नाम लिख देता है, ये सब, और सी को अपने नाम से ट्रांसफर कराता है। सी यहाँ पे क्या बन जाता है? डिफेक्टिव होल्डर। सब लोग है पक्का? अब सी से ये आगे डी को गया, डी से ई को गया, ई से एफ को गया, एफ से जी को गया। हम मानेंगे जी के पास भी वैल्यू है, गिफ्ट में था, ये वैल्यू है, ठीक है?
अब सवाल ये उठता है, जी ड्यू डेट पर बी के पास गया, बी ने डिसऑनर कर दिया, बी डिफॉल्टेड। हम कहते हैं जी हैज अ राइट टू रिकवर फ्रॉम एनी ऑफ द अदर पार्टीज, और ये सब। तो सवाल ये उठा, जी गया ए के पास, जी के पास किसके पास? एक बोलता है यू आर द अदर पार्टी, यू पे मी। ये बोलता है ये बिल तुम्हारे पास आया कहां से? मुझसे चोरी हो गया था। अच्छा तुम लाया, दिया, टाटा बाय बाय, मिलते। जी बोलता भाई तेरे पास आया हूं मैं, ये बिल बी ने डिसऑनर किया, इस बिल के तहत पेमेंट चाहिए मुझे। ये कहता है ये तो चोरी हो गया था मुझसे। जी कहता मुझे नहीं पता, ये देखता है अच्छा सी ने अपने नाम से चुराया था। सवाल ये उठता है क्या ए जी को लायबल है क्या? बिकॉज ए से वो चोरी हुआ था। द लॉ सेज यस ही इज लायबल टू जी बिकॉज जी इज एचडीसी। मतलब a negotiable instrument, even if it is stolen or obtained by fraud from any person, that person continues to be liable to the HDC. A negotiable instrument, even if it is stolen or obtained by fraud from any person, such person continues to be liable to HDC. भैया जी को क्या पता? तो ए अगर जी को दे देगा तो बाद में ए डेफिनेटली बी को स्यू करेगा। इसमें सी का तो कोई रोल ही नहीं है। ये डायरेक्टली किसको स्यू करेगा? बी को। अरे बोलो भाई, सब लोग हैं मेरे साथ? पक्का? लॉक कर दो? पक्का? ओके, जस्ट इमेजिन नाउ, इसी एग्जांपल में और ट्विस्ट कर। बी ने क्या कर दिया? साइन करके एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। ए ने साइन नहीं किया उस बिल को, अपने ड्रॉर में रख दिया, सोच करके कल जेड आएगा, जेड के सामने साइन कर दूंगा और जेड का नाम लिखकर उसे दे दूंगा। बट ए के ड्रॉवर से सी रातों रात उसे चुराता है। सी को ए का साइन पता है, सी ए का साइन खुद करता है और अपना नाम लिखता है। तो सी ने अब जो किया है उसे हम कहते हैं फोर्जरी। क्या कहते हैं? फेक साइन या डुप्लीकेट साइन किया सी ने का, और सी ने आगे वो डी को दिया। डी को क्या पता ई का साइन कौन सा है? डी को क्या पता ई का साइन कौन सा है? अरे बोलो ना भाई, डी ने गुड फेथ में ले लिया। सब लोग है क्या? डी ने आगे ई को दिया, ई ने आगे एफ को दिया, एफ ने आगे जी को दिया। जी का ड्यू डेट में बी के पास, बी ने डिसऑन कर दिया। जी प्रायर पार्टी कहते हुए ए के पास गया और ए को बोला यू पे मी। ए लायबल है कि नहीं जी को? द लॉ सेज नो। यहां पर ए लायबल नहीं है जी को, बिकॉज एक ने साइन नहीं किया था, ए का फोर्जरी हुआ था साइन। तो द लॉ सेज a negotiable instrument which is forged one, forgery है, forgery is null and void। क्या कहते हैं? null and void मतलब void अगर show। तो A इस केस में G को liable नहीं है, even though G is a HDC। तो HDC को privileges मिलते हैं, पर उस privilege का एक exception है। अगर वो forged instrument होगा तो HDC को कोई privilege मिलेगा? कोई benefit नहीं मिलेगा। Forgery will not give the HDC any benefit even though is HDC। तो जी अगर इस केस में वो नल एंड वॉइड है तो ए के पास जाता है तो ए वो इंस्ट्रूमेंट अपने पास ले सकता है। ए बोल सकता है सॉरी ये फोर्ज वन है, अभी मैं अपने पास ही रखूंगा। ए कैन एनफोर्स इट अगेंस्ट बी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जी क्या करे? जी एफ के पास जाए, जी एफ के पास जाए बिकॉज़ उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर जी का कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है। सब लोग है पक्का? तो मैंने आपको क्या बताया? ये प्रिविलेज नंबर 4 बताया गया। तो प्रिविलेज नंबर 4 आप लिखो उधर सब लोग, और उसका एक्सेप्शन भी बताया। प्रिविलेज नंबर 4 लिखो, नो प्रायर पार्टी कैन डिफेंड हिमसेल्फ, no prior party can defend himself by saying that the negotiable instrument was stolen. The negotiable instrument was stolen or obtained by fraud or obtained by fraud or unlawful consideration to a HDC. Full stop। उसके आगे लिखो HDC has a right of recovery against such party also. HDC has right of recovery against such party also। अरे बोलो
फिर उसी के नीचे लिखो एक्सेप्शन, क्या लिखोगे? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में नंबर 1 एक्सेप्शन लिखो फोर्जरी। फोर्जरी के आगे डैश करके लिखो एसडीसी हैज नो राइट इफ प्रूव्ड, कॉमा इफ प्रूव्ड, इफ प्रूव्ड कॉमा एसडीसी हैज नो राइट, ऐसे लिखो तो चलेगा। फोर्जरी डैश इफ प्रूव्ड कॉमा एसडीसी हैज नो राइट, मतलब फोर्जरी हुआ तो एसडीसी को राइट नहीं, बट वो क्या है? स्टोलन है या फ्रॉड से ऑब्टेन किया। दोनों एग्जांपल में डिस्कस किया। अनलॉफुल कंसेशन से दिया। क्या मैंने अनलॉफुल कंसेशन का एग्जांपल डिस्कस नहीं किया, वो मैं कल के सेशन में डिस्कस करूंगा। एंड कल के सेशन में कुछ और एक्स्ट्रापोलेटली बताकर फिर हम कल के सेशन में हो सके तो कुछ केस स्टडी भी देंगे। इज इट क्लियर? सो लोग है ना? दैट्स ऑल फॉर द डे। सो व्हाट वी हैव सीन टुडे फ्रॉम द पॉइंट्स टू स्टडी, अगर आप देखोगे जो पॉइंट्स टू स्टडी आपको दिए उसके अंदर क्या क्या देखा हमने? मैं कहूंगा मीनिंग देख लिया, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, होल्डर डिपोज देख लिया, प्रिविलेज ऑफ एसडीसी किया। देखो दोस्तों, मैं प्रोमिसरी नोट ध्यान रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, उसके डिफरेंसेस होते हैं एग्जाम में आ सकता है, डिस्टिंक्शन वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। प्रोमिसरी नोट के फीचर्स डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज़ आई अज्यूम यू हैव डन इट, यू विल रीड इट, वो पूरा थ्योरी है। प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक में डिस्कस नहीं करूंगा। हां, चेक के क्रॉसिंग में डिस्कस करूंगा। देन आपको ऊपर क्या है? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चेक जो भी है आपको उसको लेके आप डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, बट वो आपको फाउंडेशन में हुआ है, यू हैव डन इट। इज इट क्लियर? सो यू हैव टू जस्ट स्टडी दैट। देन अगेन मैं आपको बता दूं, मैं आपके साथ नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग आप पढ़ जाओ, अगर आपको डाउट है तो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट ये कुछ कंसेप्ट ऐसे जो फाउंडेशन में आपने पढ़े। इज इट क्लियर? सो आई विल नॉट डिस्कस दैट। जिनको देखना है ये सारे डिटेल में रेगुलर बैच में दिया है, कल मैं आगे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा। ठीक है? तो स्टॉप कर दीजिए।